आंध्र प्रदेश में मुकामी इदारे जाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां जारी हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में रियासत के तमाम सियासी जमातों के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों की राय हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने रियासत की 19 सियासी जमातों को तलब किया था, जिसमें से 11 सियासी जमातें ही इजलास में शरीक रहीं। YSR कांग्रेस पार्टी इजलास से गैर हाजिर रही। जनसेना ने मेल के जरिए अपनी राय पेश की। तेलुगु देशम पार्टी के अलावा BJP, कांग्रेस, CPI, BSP, जनता दल और मुस्लिम लीग ने साबिक में जारी करदा इंतखाबी एलामिया को बर्खास्त करने पर जोर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिए जाने वाले फैसले की तायीद की। आज आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, खुल्लम साफ इलेक्शन कमीशन साहब से बताया गया है। आंध्र प्रदेश इतिहास में 212 ZPTC मेंबर, 1200-1300 MPTC मेंबर इनानमस कराया है। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इससे पता होता है किस तरह बेइंसाफ से अनडेमोक्रेटिक वे में यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। हमें ये इलेक्शन पहले भी कई दफ़ा आपको मिलके हमें शिकायत किया गया है, लेकिन आप कभी भी इनके साथ एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए फ्री पोल करना है, आवाम को फ्री से आके वोटिंग करे जैसा इलेक्शन करवाना है। नया नोटिफिकेशन लेके आके इलेक्शन करेंगे और 26 डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो गवर्नमेंट प्रोसेस चालू किया है, उसी हिसाब से 26 डिस्ट्रिक्टों में 26 जगह पे इलेक्शन प्रोसेस करने का मुतालबा रखा है। On behalf of the CPIM, Communist Party of India, Marxist, we have given a written opinions of our party. 3 issues we have mentioned. The local body elections are very important for solving the problems of rural and urban areas, especially the local issues. That's why 73 and 74th Constitutional Amendment has made it clear elections to the local body should be held immediately after the completion of the 5-year period. But for different reasons in our state, in ruling of the different parties, elections are not being held regularly. Today I have submitted our argument before the State Election Commissioner regarding to the conduction of local self-body elections. As earlier there was a notification issued by the State Election Commission for conducting the elections, and later, basing upon the pandemic situation in the country, the Election Commission has stopped the proceedings. So between declaring the notification and between concluding that notification, at one phase there are some elections have been conducted unanimously, for which it cannot be called as an election. It was done on the basis of their money power and political power and other power. So the entire democracy was totally ruined in that regard. On behalf of CPI, we are requesting the Commissioner to abolish all the elections which were held during the March, because the ruling YSR Congress Party, they managed the administration, they hooked up with colluded with the police, and they manhandled so many nominees also. And also we are requesting the Commissioner, for the further elections, he should take the advice of the medical and health departments, and also he should review the situation where elections were held, whether it is in Bihar or in some other places, in some other states where by-elections were held. जो भी अभी तक जो ये नोटिफिकेशन दिए, वो नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने के लिए पूछे, और ऐसा भी यूनानिमस जो इलेक्शंस हुए, वो यूनानिमस को भी कैंसिल करो बोल के पूछे। The basic demands are, first we reiterated the earlier complaints which were given to the State Election Commission be addressed first, because there was a unabated violence, criminal activity and violation of the election code, etc., which should not be happened in an election, was organized by the YCP in a high level manner. It's not a small level scale or minor things. आंध्र प्रदेश में मुकामी इदारे जाती इंतखाबात की तैयारी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर के चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी से मुलाकात। इंतखाबात के इनेकाद पर हुकूमत से तलब की गई है वज़ाहत। आंध्र प्रदेश में SEC और जगन हुकूमत के बीच इख्तिलाफात उरूज पर। मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी किया गया तबादला ख्याल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश में मुकामी इदारे जाती इंतखाबात की तैयारियों के ताल्लुक से रियासती इलेक्शन कमिश्नर की चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी से मुलाकात। आंध्र प्रदेश में SEC और जगन हुकूमत के बीच इख्तिलाफात
उरूज पर मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मछलीपट्टनम म्यूनिसिपल और टाउन प्लानिंग ऑफिसरों के खिलाफ आ रही शिकायतों के बाद एसीबी अहदेदारों ने दफातर पर धावा किया। एसीबी अहदेदारों ने टाउन प्लानिंग ऑफिस में छानबीन की, तमाम फाइलों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मुलाजमीन के बयान रिकॉर्ड किए गए। एसीबी अहदेदारों ने बताया कि कई अहम दस्तावेजात हाथ लगे हैं। इसके अलावा मुलाजमीन के कब्जे से 16,000 रुपये भी बरामद हुए। एएसपी महेश्वर राव ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से टाउन प्लानिंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी। तमाम रिकॉर्ड्स की बारीक बीनी से छानबीन की जाएगी। कसूरवार अहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन के रुकन अब्दुल जिलानी ने कर्नूल जिले का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने अक़लियती बहबूद के अलावा अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन और वक्फ बोर्ड के अरकान के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। कमीशन के रुकन ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन और वक्फ बोर्ड के जरिए चलाए जा रहे तालीमी इदारों की तफसीलात हासिल की। इन्होंने तमाम तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। कर्नूल में अब तक जो कुछ माइनॉरिटी गवर्नमेंट से जो कुछ फंड्स आते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके जो कुछ प्रॉब्लम क्या है, जो उनके जो कुछ काम करते हैं उन्होंने माइनॉरिटी विकास में, डेवलपमेंट विकास में, उनके फंक्शंस क्या है, उनके प्रोग्राम्स क्या है, ये प्रोग्राम जानने के लिए मैं आ गया हूँ। जो कुछ प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम्स में माइनॉरिटी कमीशन के जरिए से थ्रू जिसको भेजना है ये रिपोर्ट्स भेजकर उनके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय ये रिपोर्ट्स तैयार कर ले जाता हूँ मैं। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, उर्दू अकाडमी और ये रेसिडेंशियल स्कूल्स, रेसिडेंशियल कॉलेज, CEDM, अभी तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वक्फ बोर्ड है, ये पूरे डिपार्टमेंट में जितने फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से, ये फंड्स फुलफिल्स आते हैं क्या नहीं। एक नेक्स्ट आपको ये फंड्स जितने आए हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है क्या नहीं, ये पूरे डिपार्टमेंट में रिव्यू करके अगरचे जो कुछ प्रॉब्लम है उनको रेक्टिफाई करने के वास्ते में वो प्रॉब्लम्स हमारे माइनॉरिटी कमीशन को भेजने के वास्ते में एक रिपोर्ट तैयार करके वो प्रॉब्लम्स पूरा हमें सॉल्व करने के वास्ते में कोशिश करते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में है सो नंद्याल, कर्नूल, आत्मकूर, इसमें उर्दू रीजनल सेंटर और कंप्यूटर सेंटर्स, लाइब्रेरीज के इंचार्जेस उन सब है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। आज तक ये कमीशन ऐसे सबको बुलाकर उनके प्रॉब्लम्स ले लेकर फिर कमीशन के चेयरमैन पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स बैठ को डिस्कस करके इसके ऊपर एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करते। आगे भी अभी 3 मंथ्स को एक बार, 4 मंथ्स को एक बार विजिट करते रहते हैं कमीशन मेंबर्स, और कमीशन चेयरमैन भी आने का चांसेस होता 6 मंथ्स को एक बार। आगे ये इंस्टीट्यूशन आके हो, और अभी कौन तो भी ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी उन्हों क्या तो भी समाज में प्रॉब्लम्स है माइनॉरिटी के बारे में, वैसा भी आके मिल सकते हैं। भी माइनॉरिटी वेलफेयर के नीचे जो भी डिपार्टमेंट्स आए और इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम डिपार्टमेंट से मुतालबा करके इनसे जो प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल है, जो फीसेस आने के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और मैन पावर के बारे में पूरा डिटेल्स लिए हैं सर। और जो माइनॉरिटीज़ को डेवलपमेंट कर सकते हैं वो स्टेप्स लेने के वास्ते माइनॉरिटी ईडी से उनका फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह से पहुंचाया जाए और उनको कौन सी इमदाद गवर्नमेंट से उनको दिया जाए, ये सब मुतालबा करने के बाद एक रिपोर्ट लेकर जाएंगे। वो कमीशन के पास रखकर, चेयरमैन के पास रखकर पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो डिस्कस होने के बाद ये रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद माइनॉरिटीज़ को जो भी इमदाद हासिल होनी है गवर्नमेंट की तरफ से उसके बारे में जायज़ा लिया जाएगा और भी स्कीम्स लाकर गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटी कॉरपोरेशन को ये डेवलप करने की कोशिश। कर्नूल जिला अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बाशा ने कहा कि औक़ाफ़ी इमलाक का जायज़ा लेने के लिए बहुत मरकज़ी टीम कर्नूल जिला का दौरा करने वाली है। महबूब बाशा ने औक़ाफ़ी अराज़ियात के कब्ज़ों से मुतालिक जानकारी को अक़लियती बहबूद के अफसरों के इल्म में लाने की आवाम से अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि औक़ाफ़ी जायदादों की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी है। वक्फ बोर्ड के ज़मीना
22,000 से 31,000 तक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्युपाई में थोड़े रजिस्टर भी दिखाते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट सर्वे करने एक टीम आती है। इसमें कौन सी ज़मीन कब शुरू हुई, कौन दी, अब प्रेजेंट क्या करने का पूरा आ जाता है। के बाद इसमें कौन कौन शामिल हो गए है, हर एक को भी, घर बनने वाले को भी नोटिस आने वाली है। उसके वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आज से तो भी कौन सी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और को कौन भी उसमें एंटर होना, बेचना, प्लाटा बनाना करे तो भी अल्लाह के वास्ते कोई भी मौलाना अब नेट में मालूम हो जाता ज़मीन कौन सी ज़मीन रजिस्टर्ड, कौन सी वक्फ बोर्ड की, कौन सी प्रोहिबिटेड कहने का सब आ जाता है। सस्ते में मिलती है घर को आगे बढ़ को ले तो फेस करना पड़ता, कितनी की तकलीफ पड़ को मेहनत के पैसा पैदा कर को रखे थे, उसी मोल को तकलीफ़ा में पड़ों को कोटा के लंबाई फिरने का रहता। ये सब भी कर लेने जैसा, एक रुपया ज़्यादा है तो भी अच्छी रजिस्टर लैंड मोले तो अच्छा रहता। अल्लाह के वास्ते ये वक्फ बोर्ड के ज़मीना में कोई भी हाथ डालो को आगे अब पूरा सर्वे होकर रिपोर्ट्स आ गए तो सबके ऊपर एक्शन लेने का रहता। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा काबू में नजर आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 74,457 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 2,900 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना से मुतासरा 19 मरीजों की मौत हुई है। मशरक़ की गोदावरी में सबसे ज़्यादा 555 नए मामले दर्ज हुए। रियासत में कोरोना से मुतासरा जुमला मरीजों की तादाद 8,11,000 के पार हो चुकी है। 7,77,000 अफराद सेहतियाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक फिल वक्त रियासत में 27,300 एक्टिव केसेस हैं। रेत की सप्लाई का मुतालबा करते हुए CITU की क़यादत में बिल्डिंग वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। कर्नूल जिले के 10 वार्ड सेक्रेटरीट के रूबरू एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजी बिल्डिंग वर्कर्स ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी बिल्डिंग वर्कर्स ने रेत की मुफ्त सप्लाई का मुतालबा किया। रेत की सप्लाई न होने की वजह से हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो गए। गुंटूर में पुलिस यौम शहीदा प्रोग्राम मनाया गया। गुंटूर में हिंदू कॉलेज चौराहे के करीब पुलिस के काम और फ़राइज़ पर तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम के जरिए पुलिस के फ़राइज़ से आवाम को वाकिफ़ करवाया गया। पुलिस यौम शहीदा के पेश नज़र 10 रोज़ा तकारीब मनाई जा रही है। 21 अक्टूबर से तकारीब का सिलसिला जारी है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस तकरीब में गुंटूर अर्बन और रूरल SP, DSP और दीगर ने शिरकत की। रियासत की YSR हुकूमत अवामी मसाइल के हल में पूरी तरह से नाकाम हो गई। कर्नूल के साबिक़ रुकन असम्बली MA गौस ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने अवाम से जो वादे किए थे वो वादे 2 साल बाद भी पूरे नहीं हुए। 15 साल से उनका जो वेज स्ट्रक्चर है रिवाइज नहीं हो रहा है। दाम तो बढ़ रहे हैं, जब दाम बढ़ रहा है तो उनका वेज भी बढ़ना ना 15 साल हुआ नहीं बढ़ता है। चंद्रबाबू नायडू नहीं करा तो इनको पहले महीने में जाके मिले थे। हम पहले मुजरियाला बनते ही जाके उनको दरखास्त दिए, उन्होंने बोले नहीं मैं फौरी कर दूंगा। 1.5 साल हो गया, वो कागज़ का है मालूम नहीं। बिल्डिंग वर्कर्स के पैसे 1200 करोड़ रुपए बैंक में जमा हो गए। उनका सेस, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं, बिल्डिंग वर्कर्स के वेलफेयर के वास्ते में आया सो पैसा। हुकूमत के फलाही स्कीमात से आवाम को वाकिफ़ करवाना ही हमारा एक अहम मकसद है। इसी मकसद के तहत अनंतपुर ज़िला कलेक्टर ने बीती रात कदरी मंडल के एक छोटे से देहात का दौरा किया। इस दौरान ज़िला कलेक्टर ने मुकामी लोगों से बातचीत की, इनके मसाइल से वाक़ियत हासिल की। ज़िला कलेक्टर ने हुकूमत के फलाही स्कीमात से आवाम को वाकिफ़ करवाया। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि देहात के लोगों के ज़्यादातर मसाइल ज़रई और रिहायशी अराज़ी से जुड़े हुए हैं, जिसे बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से रियासत आंध्र प्रदेश में तालीमी इदारे बंद पड़े हैं।
प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन की क़यादत में विजयवाड़ा के धरना चौक पर धरना दिया गया। एहतजाजी प्राइवेट टीचर्स का कहना है कि इन्हें गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाह नहीं दी गई, जिसकी वजह से इनका गुजर बसर मुश्किल हो गया। एहतजाजी प्राइवेट टीचर्स ने मसाइल के हल का हुकूमत से मुतालबा किया। In Andhra Pradesh particularly, in all private educational institutions were closed due to coronavirus pandemic situation in the month of March. Since then, there have been no payment of salaries across the state. Almost there are 5.5 lakhs teachers have been working in these organizations, teaching and non-teaching. But the government of Andhra Pradesh from the Department of Education has issued some proceedings. Still, there is no action from. इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।